Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahinderganj, Rajpura, District Patiala. Students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11th class biology ਦਾ chapter 4th Animal Kingdom start ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RH ਵਿਟਕਰ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਦੱਸੇ, ਕਿੰਗਡਮ ਮੋਨਰਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ, ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ ਐਂਡ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਨੂੰ 11 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। Phylum Porifera, Phylum Coenobacter, Phylum Ctenophora, Phylum Platyhelminthes, Phylum Aschelminthes, Phylum Annelid, Phylum Arthropoda, Phylum Mollusca, Phylum Echinodermata, Phylum Hemichordata and Chordata. These are the 11 phyla. लेकिन बेटे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑन what parameters या किहड़े क्राइटेरियाज ने जिन्हां दे बेसिस दे उत्ते ਇਹ ਹਿਊਜ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ 11 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ 11 ਫਾਈਲਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੈਬੀਟੈਟ। ਹੈਬੀਟੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਐਕੁਆਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂੰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜ਼ੂਪਲੈਂਕਟਨਸ। ਜ਼ੂਪਲੈਂਕਟਨਸ ਉਹ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਫਨੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਟੋਨਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਟੋਨਸ ਨੇ। ਬੈਂਥਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਥਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੈਟ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਫਜ਼ੋਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਇੰਗ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਰਥਵਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਇੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਸੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਰਸੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਲੈਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਨ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਰਸ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਹੈ, ਕਰਸੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ। ਥਰਡ ਨੇ ਸਕੈਂਸੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਦੇ ਆਰ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈੰਬਿੰਗ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲਾਈਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਰਬੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਆਰਬੋਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੋਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ। ਏਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
नाउ सेकेंड पैरामीटर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सानू पता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इन एनिमल किंगडम वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स। हुण सैल्स किस तरह अरेंज्ड ने ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਅਸੀਂ एनिमल्स की क्लासीफिकेशन की हुई है। पहला है सैलूलर लैवल कि बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट वी नो, बट हाउ दीज सेल्स आर अरेंज्ड, देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन अमंग द सेल्स। सेल्स लूजली अरेंज्ड ने, इस तरह लूजली अरेंज सेल्स ने एंड दे आर मेकिंग ए बॉडी, ठीक है। सैल एग्रीगेट, हर एक सैल अपना फंक्शन कर रहा है, सैल डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, हर एक सैल का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है, अपने सारे काम वो आप करेगा। सो देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन अमंग सेल्स। सैलूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहांगे जिन्ने भी स्पॉन्जिज ने फाइलम पॉरीफेरा दे एग्जिबिट सैलूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके क्यों बेटे सैल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, हर एक सैल के अपने फंक्शंस ने, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। सो सैल्स ने ग्रुपिंग कर ली, सेम फंक्शन करने वाले सैल्स ने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को असी क्या टिशूज़, वट आर टिशूज़, टिशूज़ आर ग्रुप ऑफ सैल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिशू लेवल है और कोऑर्डिनेशन अमंग सैल्स है। इत्थे डिफरेंस आ गया सैलूलर लेवल नालों। टिशूज़ दे विच कोऑर्डिनेशन है, असी सीलेंट्रेट फाइलों नूं टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच रखता, ठीक है। तुसीं हाइड्रा देख रहे हो। नैक्सट इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मल्टी सैलूलर जिहड़े एनिमल्स ने उन्हां दा जिहड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हुण ऑर्गन लेवल है। टिशूज़ ने ग्रुप बना के की बना ले, ऑर्गनस बना ले, डिवीजन ऑफ लेबर होर रिफाइंड हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल असी की देंगे प्लेटीहेलमिंथेसिस फ्लैटवर्म्स, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर बेटे। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुण ऑर्गनस ने जिहड़े सिमिलर ऑर्गनस ने जिहड़े अपना फंक्शनस परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया अलग तो, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गनस ने, स्टमक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उन्होंने ग्रुप बना के एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया एंड दे विल डू द फंक्शन ऑफ ओनली डाइजेशन। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना काम है। सो क्लीयर कट डिवीजन ऑफ लेबर हो गई, ठीक है। अपना अपना हर एक सिस्टम अपना अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल देंगे एनीलिड्स टू कॉर्डेट्स। एनीलिड फाइलम तो लैके कॉर्डेट तक जिन्ने भी ऑर्गेनिजम्स ने दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटे इस डायग्राम तो तुसी ईजिली समझ सकते हो कि जिमें सैल्स ने सैलूलर लैवल है, इत्थे सपोज सैलूलर लैवल स्पॉन्जिस की गल करिए असी, फिर उन्होंने टिशू लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उस तो बाद ऑर्गन लैवल तो बाद ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑल द ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल। सो दीज आर द लैवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों के बेसिस के उत्ते असी क्लासीफिकेशन है जिहड़ी पढ़ी है। ये बेटे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम चीज़ रिपीट की है मैं ताकि ਤੁਹਾਡਾ कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। सैलूलर लैवल, टिशू लैवल, ऑर्गन लैवल, सिस्टम लैवल एंड दैन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये हायरार्की है जिहड़ी क्लासीफिकेशन दे विच बहुत हैल्पफुल है। नाउ थर्ड पैरामीटर इज बॉडी प्लान। फर्स्ट पैरामीटर असी हैबिटेट किया, सैकेंड पैरामीटर असी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, थर्ड पैरामीटर इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मीनस कि मॉर्फोलॉजिकली जो सिस्टम है वो किस तरह का है किसी ऑर्गेनिज्म का। तो फर्स्ट ये आ जाता है बेटे सैल एग्रीगेट प्लान। इट इज़ सिमिलर टू सैलूलर लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तुसी वो समझ चुके हो तो ये तुसी ईजिली समझ सकते हो कि सैल्स आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है, दे मेक एग्रीगेट ऑफ सेल्स, नो कोऑर्डिनेशन, सैल एग्रीगेट प्लान। असी ऑलरेडी क्या है कि सैलर लेवल या सैल एग्रीगेट प्लान इट इज़ फाउंड इन स्पॉन्जिस। सैकेंड है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। हुण ये की है बेटे, ब्लाइंड सैक मीनस कि बॉडी सैक लाइक, ओके ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ही ओपनिंग है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ हाइड्रा की भी एग्जाम्पल देख रहे हो, हाइड्रा की एक ही ओपनिंग है जिदे थ्रू
उन्हें इंजैशन भी करना है और ऐसे ओपनिंग के थ्रू उसने इजैशन भी करना है। ठीक है, दे हैव इनकम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिन्ना ऑर्गेनिजम्स दे विच एक ही ओपनिंग है दैट सर्व एज माउथ एज वेल एज एनस, उन्ना ऑर्गेनिजम्स दा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हुंदा है एंड दे हैव इनकम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਾਊਥ ਇਜ਼ ਫॉर ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਇਜੈਸ਼ਨ। ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जिवें सपोज अवर होल बॉडी इज ए ट्यूब और ਉਹਦੇ अंदर साडी एलीमेंट्री कनाल एक होर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विच हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। निमेटोड्स की एग्जाम्पल दे सकते हाँ असी। नाउ क्योंकि असी माउथ एंड एनस की गल कर रहे हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टम की गल कर रहे हाँ, तो बेटे इत्थे एनीमल्स नूं दो कैटेगरीज फरदर डिवाइड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोम्स एंड ड्यूटेरोजोम्स। हुण आओ इसनूं समझण दी असी कोशिश करते हाँ। बेटे की हुंदा है कि जदों जाइगोट तो एंब्रियो की डिवेलपमेंट हुंदी है, जाइगोट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उहदे विच माइटोटिक डिविजन्स हुंदियां ने और वन सैल मल्टी सैल और जड़ा है सैल दे विच कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मल्टी सैलर स्ट्रक्चर दे विच कन्वर्ट हो जाता है, जिसनों असी की कहते हाँ लेटर ऑन ए एंब्रियो दे विच डिवेलप हो जाता है। तो जो ये एंब्रियो की डिवेलपमेंट हो रही होंगी है तो उदों बेटे की हुंदा है इहदे विच, चलो आप ऐसे डायग्राम तो ही समझने की कोशिश करते हाँ कि सपोज ए एंब्रियो की डिवेलपमेंट हो रही है तो इत्थे एक पोर अपीयर हुंदा है। मैं डायग्राम नूं जूम करके दिखानी है तुहानूं। इज इट क्लीयर नाउ? ओके, सो ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंदा है उसनूं कहंदे ने ब्लास्टोपोर। ठीक है, अगर ब्लास्टोपोर तो माउथ बनता है पहला, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स नूं असीं कहने आ प्रोटोजोम्स। इस चीज़ का बेटे ध्यान रखना है, पहला माउथ बनेगा उस ओपनिंग तो वो ऑर्गेनिजम्स नूं असीं प्रोटोजोम्स की कैटेगरी विच रखांगे। और ऑल फाइला, ठीक है, ऑल फाइला एक्सेप्ट काइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है, वो प्रोटोजोम्स ने। सैकेंड कैटेगरी है ड्यूटेरोजोम्स। आप फिर डायग्राम जूम करते हाँ। हुण ड्यूटेरोजोम्स दे विच की है, ब्लास्टोपोर है जिहड़ा उहदे तो पहला एनस बन रहा है, माउथ बाद विच बनेगा, दिस इज माउथ, ये बाद विच बनेगा। पहला एनस बनया, प्रोटोजोम्स दे विच पहला माउथ बनया सी, ठीक है, बाद विच एनस बनया। ड्यूटेरोजोम्स दे विच ब्लास्टोपोर तो पहला एनस बनया फिर माउथ बनया। सो उन्हां एनीमल्स नूं असीं ड्यूटेरोजोम्स कहंदे आ। क्लीयर है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट है कंसैप्ट क्लीयर करना। इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, दे आर ड्यूटेरोजोम्स। क्लीयर है बेटे? प्रोटोजोम्स एंड ड्यूटेरोजोम्स। चलो असी नैक्सट देखते हाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम भी जोड़ा है सिस्टम असी क्योंकि सिस्टम कर रहे हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दे विच भी काफ़ी कुछ जोड़ा है सानू डिफरेंशिएशन वेखण नू मिलेगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे बेस ते भी और फाइलां नू डिवाइड किया गया है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो पहला तुसी क्लोज नू समझो क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन दे विच है। सानू पता है हार्ट है जिहड़ा हार्ट दे विच ब्लड है और हार्ट ब्लड नू पंप आउट करता है। जदों हार्ट तो ब्लड बाहर जाता है तो वेन्स एंड आर्टरीज दे विच फ्लो करता है, क्लोज्ड पाइप्स दे विच फ्लो करता है, तो असीं कहांगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ने जिन्हां दे विच ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज दे आर डायरैक्टली bathed इन इट। ओपन कैविटीज दे विच ब्लड मूव करता है। मोलस्का एंड आर्थ्रोपॉड फाइलम इन जिहड़े उन्हां दे विच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सो हुण तुसीं हौली हौली समझ रहे होवोगे कि किहड़े पैरामीटर्स किहड़े क्राइटेरिया दे बेस ते एनीमल किंगडम नूं 11 फाइला दे विच क्लासीफाई किया गया है। फोर्थ पैरामीटर इज सिमिट्री। सिमिट्री की हुंदा बेटे एक तरह का प्लान है, जिवें तुसीं 10th विच मैथ विच पढ़िया होएगा सिमिट्री, ड्रॉ टू सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किया होएगा ना तुसीं। सो इस तरह सिमिट्री मीनस कि एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन
ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੌਂਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਡੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਪੌਂਜਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਐਨੀ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਿਸ cannot divide the organism into two equal halves, so asymmetrical organisms ਹੋ ਗਏ। sponges and adult snail। ਹੁਣ ਅਡਲਟ ਵਰਡ ਤੇ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਸਨੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਵਿਚ ਪੋਜੈਸ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਰੇਡੀਅਲ ਮੀਨਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਫੇਰਿਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ, ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? bilaterally symmetrical organism है। clear? Fifth parameter is diploblastic and triploblastic organization। बट ਹੁਣ diplo means two, blastic means blastula। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਮਬਰੀਓ ਹੈ ਔਰ ਐਮਬਰੀਓ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ठीक है? जिवें मैं इत्थे भी तुहानूं दस्सिया है, सपोज एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये हैगी है एक्टोडर्म और जिहड़ी अंदर वाली ये हैगी है एंडोडर्म। ठीक है? विच जिहड़े पिंक है अनडिफरेंशिएटेड सैल्स ने, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। सो तुसीं याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजिस दे विच जदों उहदे विच एम्ब्रियो दे विच दो लेयर्स बनदियां ने तां उहनां नूं असीं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहंदे हां। पहले तुसीं कंसैप्ट क्लीयर कर लो बेटे। ठीक है? अगर एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट के टाइम तीन लेयर्स बनदियां ने जिहदे तो ऑर्गेनिज्म डिवेलप हुंदा है तो असीं कहांगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इन्नी गल क्लीयर हो गई बेटे? सो हुण असीं डेफिनेशंस करदे हां। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एक्सटर्नल इज एक्टोडर्म, ये किहड़ी है बेटे? एक्टोडर्म। एंड द इंटरनल इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। Those organisms are called डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हुण तुसीं कहोगे कि इन्हां लेयर्स का काम की है बेटे? इन्हां दोनों लेयर्स तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवेलप होएगी। जिस तरह एक्टोडर्म है, इहदे तो स्किन बनेगी। ठीक है? हेयर्स बननगे, होर भी बहुत सारे ऑर्गन्स ने जिहड़े एक्टोडर्म तो बननगे। ठीक है? एंडोडर्म है, इहदे तो साडे की कहंदे ने स्कैल्टन बनेगा, मसल्स बननगियां, ब्लड बनेगा, एंडोडर्म तो बनेगा। सो दो लेयर्स ही होंगियां, उन्हां तो ही पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाएगा। उन्होंने डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहांगे। ठीक है? ट्रिप्लोप्लास्टिक हुण तुसीं समझ गए होवोगे कि जदों एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट हो रही है और तीन लेयर्स बन रही ने। हुण एक्टोडर्म एंडोडर्म तुसीं समझ गए। तीसरी लेयर चलो आप दोबारा लेबल कर देने, वैसे डायग्राम च लेबल किया होया एक्टोडर्म, एंडोडर्म और जिहड़ी तुसीं येलो देख रहे हो इट इज़ द थर्ड लेयर मीजोडर्म। तीन लेयर्स करके इन्होंने असीं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहता। हुण इन्हां दे बॉडी पार्ट्स इन्हां तिन्नां लेयर्स तो डिवेलप होणगे। मीजोडर्म तो स्टमक बनता है, लिवर बनता है, लंग्स बनदियां ने।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 3 ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ, ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਈਲਮ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿੰਥੇਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਰਡੇਟਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਟੋ ਐਂਡ ਐਂਡੋ। सिक्स्थ पैरामीटर, सिक्स्थ क्राइटेरिया इज सीलोम। सीलोम बेटे एक बॉडी कैविटी है, एक कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हुण जिस तरह साडी बॉडी है उहदे विच साडे वाइटल ऑर्गनस ने वो सारे सस्पेंडिड ने कैविटी दे विच। वो कैविटी दे विच फ्लूइड फिल है, वो फ्लूइड है जिहड़ा बॉडी दे इंटरनल ऑर्गनस नूं शॉक तो धक्के तो बचा के रखता है। हुण तुसीं देख रहे हो खाली स्पेस दिखाई हुई है चैस्ट एरिया विच, इहनूं कहंदे ने थ्रैसिक कैविटी। एबडोमन एरिया दे विच स्पेस दिखाई हुई है, इहनूं कहणगे एबडोमिनल कैविटी। पैल्विक एरिया दे विच स्पेस दिखाई हुई है जिहदे साडे रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस हुंदे ने। सो ये पैल्विक कैविटी, दीज आर द एम्प्टी स्पेसिस एंड दीज स्पेसिस दे आर लाइन्ड बाय मीजोडर्म। ये एम्प्टी स्पेसिस एक कैविटी नूं कहंदे ने सीलोम। ठीक है, सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी और इन्हां दे विच की होणगे साडे वाइटल ऑर्गनस होणगे। हुण जिहड़े ऑर्गेनिजम्स दे विच सीलोम है, कैविटी है, उन्हां नूं असीं कहने सीलोमेट ऑर्गेनिज्म या यूसीलोमेट। ठीक है, ह्यूमन ट्रू सीलोम और बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम इज ऑलवेज लाइन्ड बाय मीजोडर्म फ्रॉम ऑल द साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइलम एनिलिड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स दे आर सीलोमेट, उन्हां दे विच ट्रू बॉडी कैविटी है। हुण मैं डायग्राम जूम करके दिखानी है बेटे तुहानूं। ठीक है, ये तुसीं देख रहे हो, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज येलो एंडोडर्म, येलो कलर दी है जिहड़ी। ठीक है, फिर यह है बॉडी कैविटी। तुसीं इहनूं बॉडी कैविटी दे नाल कन्फ्यूज नहीं करना, दिस इज ओवर डाइजेस्टिव ट्रैक। क्लीयर। सो ये बॉडी कैविटी है जिहड़ी, इट इज लाइन्ड बाय मीजोडर्म फ्रॉम द पैराइटल साइड एज वेल एज फ्रॉम द इनर साइड। दोनों साइड्स तो तुसीं देख रहे हो पिंक लेयर दे नाल लाइन्ड है। सो ट्रू सीलोम इज ऑलवेज लाइन्ड बाय मीजोडर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्लियर। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑन द basis of coelom is acoelomates. Animals in which the body cavity is absent, body cavity है ही नहीं, they are called acoelomates. For example, platyhelminthes, flatworms. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायग्राम जूम करके देखो कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बॉडी कैविटी दिख रही है। डोंट कन्फ्यूज विद दिस, दिस इज़ नॉट द बॉडी कैविटी, दिस इज़ द डाइजेस्टिव कैविटी। बॉडी कैविटी अगर होंगी तो इत्थे होंगी किते, लेकिन इत्थे नहीं है। 3 लेयर्स ही ने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म एंड दिस इज ओवर डाइजेस्टिव कैविटी। नो सीलोम, सो दे आर acoelomates ऑर्गेनिजम्स। प्लैटीहेल्मिन्थेसिस फाइलम की एग्जाम्पल दे सकते हाँ असी। ठीक है बेटे। एक होर कैटेगरी है सूडोसीलोमेट्स। सूडो मीन्स फेक, झूठा। सो एक कैविटी है बट दैट इज़ नॉट द ट्रू सीलोम, क्योंकि ट्रू सीलोम हमेशा मीजोडर्म द्वारा लाइन्ड होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म। पहली तो गल ये है। और मीजोडर्म अगर है भी तो वो ਸਕੈਟਰਡ है, पाउचिस ਦੇ ਵਿੱਚ है, इनकम्पलीट है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। And such body cavity which is not lined by mesoderm properly, it is called pseudocoelom, and the organisms are called pseudocoelomates. Escalmanthes phylum ਦੇ एग्जाम्पल दे सकते हाँ। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायग्राम देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे ਤੁਸੀਂ देखो 2 डायग्राम्स ने, बुक ਵਿੱਚ डायग्राम ਦਿੱਤਾ होया। ठीक है, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ है एक्टोडर्म, लेबल करो नाल नाल। ठीक है, ਇਹ ਕੀ है एंडोडर्म, स्कैटर्ड पैचेस दे विच की है मीजोडर्म। सो दिस इज द बॉडी कैविटी बट इट इज़ नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म, इट इज़ लाइन्ड बाय द मीजोडर्म इन पैचेस। सो दे आर कॉल्ड सूडोसीलोमेट्स। एक केस है भी है बेटे इंटरेस्टिंग है, तो कंसैप्ट होर क्लीयर हो जाएगा। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मीजोडर्म। ठीक है, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज द कैविटी, but this is false cavity क्योंकि it is lined by the mesoderm only from one side। parietal side तो लाइन है, एक कैविटी अंदर वाली साइड तो mesoderm, इत्थे mesoderm नहीं है। so this is the false
cavity because it is lined by mesoderm only from the parietal side. अंदर कोई mesoderm नहीं है. So these are pseudocoelomate, pseudocoelom. Clear? Now, seventh parameter is segmentation. नाम तो clear है बेटे, segments. Body is divided into segments, externally as well as internally. ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਵਰਮ ਐਨੀਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ these segments are formed. Segmented body is represented through a phenomena called metamerism. Body shows metameric segmentation and this phenomena of showing segmentation is called metamerism. Arthropod phylum and annelid phylum ਜਿਹੜਾ ਹੈ segmented body show ਕਰਦੇ ਨੇ. Clear bete? Now, eighth parameter is notochord. But in notochord is mesodermally derived rod-like structure. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ectoderm, endoderm, mesoderm ਤੋਂ body ਦੇ parts ਬਣਦੇ ਨੇ. So ਜਿਹੜੀ notochord ਹੈ ਉਹ mesoderm ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ. It is a rod-like structure ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ rod-like structure ਹੈ. On the dorsal side ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰੀਓ ਦੇ ਬਣਨ ਟਾਈਮ ਨੋਟੋਕੌਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਰਡੇਟਸ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੌਰਡੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਦ ਨੋਟੋਕੌਡ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੌਰਡੇਟਸ. ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ, ਰਿਪਟਾਈਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੋਕੌਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਰਮ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨੌਨ ਕੌਰਡੇਟਸ. एग्जाम्पल्स पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स सारे की ने नॉन कॉर्डेट्स ने. क्लीयर? और इत्थे बेटे एक चीज़ होर है कि जिहड़ी नोटोकॉर्ड है वो कई बारी एम्ब्रियोनिक स्टेजिस विच प्रेजेंट हुंदी है और एडल्ट स्टेज दे विच आफ्टर द डिवेलपमेंट ये डिसअपीयर हो जाती है, वर्टिबल कॉलम दे विच चेंज हो जाती है. उन्हां ऑर्गेनिज्म नूं असीं वर्टिब्रेट्स कहंदे आ. ठीक है? सो जिहड़े हैगे ने वर्टिब्रेट्स उन्हां दे विच नोटोकॉर्ड तो है, बट वो कदों सीगी? एम्ब्रियोनिक स्टेजिस दे विच सी. क्लीयर? सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स क्योंकि उन्हां कोल नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज ते सी. बट ऑल कॉर्डेट्स कैन नॉट बी वर्टिब्रेट्स. जरूरी नहीं है कि नोटोकॉर्ड एवरी टाइम एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ए वर्टिबल कॉलम दे विच डिवेलप हो जाए. ठीक है बेटे? सो ये तो सीगे साडे अज दी लैक्चर दे मेन टॉपिक्स कि असी किहड़े पैरामीटर्स दे उत्ते एनीमल किंगडम नूं 11 फाइलां दे विच डिवाइड किया है. नैक्सट लैक्चर दे विच असी हर एक फाइलम दे विच ऑर्गेनिजम्स दे करैक्टर डिटेल विच करांगे. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.